ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਬਲਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਦਾਰਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਲਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਲਿਆਰਾ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਨੂ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਪੁਰਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਤੀਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤੀਪੁਰਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਸਤੀਪੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 2 ਕਿੰਜਵਾਦੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਟ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਾਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਗਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? अगर मेरा कोई किसी के साथ वैर विरोध या कुछ, वो मेरा किसी के साथ कुछ है नहीं, ठीक है। और मैं सपोर्ट करूँगा तो वो मेरे समाज के नाम पे सपोर्ट करूँगा। ये नहीं है कि मैं दूसरे समाज को गालियाँ देता फिरूँ, ये सिख क्या है, फलाना क्या है, सिंधी क्या है, मोहम्मदन क्या है। नहीं, मैं मेरे समाज की सेवा करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे समाज को लेके साथ में, और मैं मेरे समाज की सेवा करता हूँ। दूसरे समाज की भी अगर मुझे मौका मिले, या मुझे मौका बहुत बार मिलता है, तो मैं उनकी भी सेवा करता हूँ। ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਐਚਕੇ ਟਾਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? और डीन अपने यहाँ पे सिविल लाइन की थे, हनुमाना राम जी थे, और उनसे हमने पूछे तो उन्होंने कुछ आगे आवाज़ नहीं निकाली। हमने बोला सर आप साथ में लो, पहले तो बोलते मैं वो बनता था, मैं देखता था, वो ऐसे नहीं हुई। मैं क्यों चलो सर साथ में अपने, आप जा क्यों नहीं रहे, आपको डर किस बात का? डर किस बात का? आप बोल रहे थे मैंने ऊपर रह के करवाया, वो हो ही नहीं सकता, तो वो फट कैसे गया? तो डीन बोलता आप चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। पीछे से हम हमारी गाड़ी में बैठे और डीन अपनी खुद की गाड़ी लेके भाग गया। तो वो यहाँ हनुमानगढ़ भी नहीं था, वो बीकानेर ही भाग गया था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਸੁਧੀਰ ਬਲਿਆਰਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧੀਰੂ ਬਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਓ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਕਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਲਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਦਾਰਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਲਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਬਲਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲਿਆਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਲਿਆਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਲਹਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲਿਆਰਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤੀਪੁਰੇ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਸਤੀਪੁਰੇ ਜੀ ਬਲਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? हाँ, और आसे पासे है नहीं, लेकिन अपने हनुमानगढ़ गानगढ़ जिले च एक पिंड है सतीपुरा, ते रावसर कोले 14-15 वाला ਚੱਕ ਹੈ, शायद ਉਹਨੂੰ 16 ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ 3-4-5 ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਪੁਰਾ ਇਹ ਬਲਿਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤੀ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ 7 ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਤੀਪੁਰਾ ਵਸਿਆ। ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘੇ ਵਗ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਾਗੜ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ।
ਔਨ ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਈ ਸਤੀਪੁਰਾ? ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150-200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਲਿਆਰਾ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਨੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੋਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਲਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਪੁਰਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਤੀਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਤੀਪੁਰਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਸਤੀਪੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 2 ਕਿੰਜੀ ਵਾਦੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤੀਪੁਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਤੀਪੁਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਪਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਤੀਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ 56 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ था, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮਲਕੀਤ ਕਲੋਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਜਵਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਦਾਨ ਕਲੋਨੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਤੀਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਟੋਟਲ 2700-2800 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਬਣਾਤਾ, 56 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ। 56 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ। ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਬਈ ਸਤੀਪੁਰੇ? ਸਤੀਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ 2200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। 2022? ਹਾਂਜੀ। 2200 ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਆ ਸਾਰਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤੀਪੁਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 2200 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮਲਕੀਤ ਕਲੋਨੀ, ਮਦਾਨ ਕਲੋਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 2700-2800 ਵੋਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਕਵਾੜੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਚ ਚੂਨਾ ਫਾਟਕ ਦੋ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਤੀਪੁਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੂਨਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਕ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਟ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਮਸ ਆ। ਉਹ ਫੇਮਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸਾਰਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਵੀ ਸਾਰਨ, ਤੇ ਗਗਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਗਨ ਰਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਗਨ ਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। 700-800 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਵੋਟ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਾਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਮਡਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਗਗਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਟ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜਾਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਈ 0001 ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ 100 ਮੁੰਡੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਾਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਾਟ ਕਲੱਬ ਸੰਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਧੌਲੀਪਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜੇ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ 13 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਟ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਂਵ ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਂਵ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਭਰਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਤੇ ਪੂਰਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਜੀ ਸੋ ਹੋਏ, ਹਰੀਸ਼ ਭਈਆ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲਿੰਕ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ना मैं आम आदमी के नाम। मैं हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों के साथ हूँ। वो सही है तो उनके साथ हूँ, गलत है तो वो उनको बोल दूंगा भी तुम गलत है यहाँ पे, तो वो चीज है। तो मैं कोई पार्टी को स्पेशल सपोर्ट नहीं करता। बीजेपी वाले अगर गलत है तो मैं बीजेपी का हूँ तो ठीक है, मैं बीजेपी के साथ हूँ, ये नहीं, मैं सही के साथ हूँ। अगर बीजेपी वाले किसी गरीब आदमी को दबा रहे हैं तो मैं उसके साथ रहूंगा। वो गलत है तो गरीब आदमी के साथ मैं उसका सहारा बनूंगा, उसके साथ खड़ूंगा, भले ही सामने बीजेपी पार्टी है, भले ही कांग्रेस है। मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? नहीं जी, मेरा कोई मूड नहीं। जिवें गांव दे हैगे जो सारे लोग हैं, बुजुर्ग है मेरे, मुझसे बड़े हैं, भाई हैं, वो बैठ के निर्णय करेंगे भी किसको लड़ाना है किसको नहीं, तो वही तय करते हैं। पहले मेरे गांव की रिवाज है ये भी, मेरे गांव में जाट और सरदार, कुमार, मेघवाल भी जाती है, तो ये सभी रहते हैं। तो बारी उन्होंने क्या, वो बारी बांध ली उन्होंने। जैसे पिछली बार मेरा भाई था, उससे पिछली बार सरदार थे, तो वो एक साल जाट एक साल सरदार, और वो टिकट पे सरपंच वो उस पे देखते हैं भी सामान्य रिजर्व आई है, ओबीसी आई है, उस हिसाब से वो नाम निकालते हैं। और मेरा गांव का मैं बहुत इतना मतलब मैं आदर सम्मान करता हूँ कि मेरा गांव में कोई जातिवाद नहीं है अभी तक। जात है कोई जातिवाद कोई मुद्दा नहीं है मेरे गांव के अंदर, चाहे सरदार है चाहे वो बाणिया है, सारे इकट्ठे रल मिल के सारे एक थां बैठ के एक ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਾਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 36 ਕੌਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये नहीं बोलता भी मैं हर टाइम में जाट समाज का नाम लूंगा। मैं जाट हूँ, ठीक है, और मैं जाट, मेरे समाज को मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर मेरा कोई किसी के साथ वैर विरोध या कुछ, वो मेरा किसी के साथ कुछ है नहीं, ठीक है, और मैं सपोर्ट करूंगा तो वो मेरे समाज के नाम पे सपोर्ट करूंगा। ये नहीं है कि मैं दूसरे समाज को गालियां देता फिरूं, ये सिख क्या है, फलाना क्या है, सिंधी क्या है, मोमडन क्या है, नहीं। मैं मेरे समाज की सेवा करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे समाज को लेके साथ में, और मैं मेरे समाज की सेवा करता हूँ। दूसरे समाज की भी अगर मुझे मौका मिले, या मुझे मौका बहुत बार मिलता है, तो मैं उनकी भी सेवा करता हूँ। लेकिन मैं किसी समाज को नीचा दिखाना या उस किसी को गालियां देना, मुझे ये कभी बर्दाश्त नहीं है, ना मैं खुद देता। ठीक है, मैं जाट हूँ तो मैं किसी दूसरे समाज को गाली नहीं देता, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ। हाँ जी, वो पहले मैं क्रिकेट खेलता था, और मुझे कोई भी गेम खिला लो, लगभग मैं बढ़िया खेलता हूँ। मैंने अखाड़े में ये राजा पहलवान जी थे, वो मेरे गुरु भी रहे हैं 6 महीने। मैंने कुश्ती भी की हुई है, और मैं क्रिकेट भी खेलता था। जब दीपक चार आज इंडिया टीम खेल रहा हूँ, वो कैप्टन था उस टाइम, और हनुमानगढ़ जिला बना था उस टाइम। मेरे बड़े ब्रदर है सिद्धार्थ बलियारा, वो पहला लड़का था जो रणजी खेला था। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਲਈ?
ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਈ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ग्राउंड ਨਾਲ जुड़ो। अपने हनुमानगढ़ में भी जिला क्लब है, राजीव गांधी स्टेडियम भी है, और भी अपने आसपास में अपने जैसे कोई भी मोहल्ला है या कहीं पे भी है, सरकारी स्कूल है गाँव में, तो बहुत बड़े बड़े स्कूल बड़े हैं, तो उस ग्राउंड से जुड़ो ताकि इस नशे से आप दूर होगे। और आपको क्या पता आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है। क्या कल को अगर आप कोई भी गेम में या कोई भी लाइन में कोई किसी भी जाते हो तो आपके गांव का नाम होगा, सबसे पहले अपने माँ बाप का नाम होगा, गांव का नाम होगा। अगर वो गांव से बिलोंग करता है, शहर से करता है, तो वो शहर का नाम होगा, वार्ड का नाम होगा, जिले का नाम होगा। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ, ਫੋਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਫੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੇਮ ਕਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮਿਨੀ ਮਿਲਟੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਪਬਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ और अपना गुरु सही चुनना बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਰੋਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, 5 10 20। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਟ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਐਤਕੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 500 600 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਪਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 2.5-3 ਕੁਇੰਟਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸਿਨੇਮੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਦਰਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। 60,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ,
ਅੱਛਾ 60,000 ਸਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਬੁੱਕੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। ਆਪੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਹਫਤਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਮੰਗੀਏ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਧੀਰੂ ਬਲਿਆਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ नहीं, ਜਦੋਂ नहीं, अपने किसी से कोई मांग के नहीं लेते। जैसे आप भाई हो, आपसे मांग के ले लेंगे भाई यार ये दे दें, लेकिन हमने कभी भी वो सट्टा बुक्की नशा जो बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं किसी से कभी कुछ पैसे नहीं मांगे। ਇੱਕ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਐਚਕੇ ਟਾਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਹੈ। यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, ਉਹਦੇ अंदर मेरा ऐसा रजिस्टर से सारे साइन हुए हुए हैं। 2 तारीख थी, उसके अंदर मैं LLB का फाइनल का लास्ट ही मेरा एग्ज़ाम था, वो मैं NM लॉ कॉलेज में दे रहा था। और मेरा शहीद भगत सिंह कॉलेज के लेटर पैड पे प्रिंसिपल ने भी ये लिख के दिया है भी ये 1 बजे से लेकर 4 बजे तक एग्ज़ाम में था। और वो FIR है उसमें 2 से 2:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा उसमें मैं डिस्चार्ज भी हो जाऊंगा, मेरा उसमें मैं कोई मेरा वो नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ हाँ अरेस्ट भी किया गया सी ते मैनू तंग भी किया गया सी, पुलिस वालियां ने तंग भी किया सी, ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ? हाँ टॉर्चर किया सी भी तू ही पिस्तौल दिते है, तू ही सारा कुछ दिता है, सारा तू ही किया है। ते बाद च उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो मेरा 1% भी कुछ भी नहीं मिले। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਕੂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਰਾ? ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦਿਨ BJP ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਨਿਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਧੀਰੂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, बदला लेते? नहीं, अपनी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना मेरा किसी से वैर विरोध है, ना मैंने आज तक किसी के साथ जाके कोई लड़ाई की, और ना ही मुझे पता ही नहीं था भी मेरे साथ ये होने वाला है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੀਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਧੀਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਦਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਏ ਬੰਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? देखो हर बंदे का अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, जैसे बाहर वाले को हो गया या कोई अपना दोस्त हो गया, तो वो उसका वो अपना खुद का फैमिली मेंबर मान, तो हो सकता है उनके पारिवारिक लिंक उनके गणेश जी के साथ बढ़िया हो, तो जैसे मेरे डॉक्टर साहब के साथ बढ़िया है, तो अगर वो भी मुझसे आके पूछे भी तुम हमारे साथ लग, तो क्या भी इन्होंने फोर्स नहीं किया भी? नहीं उन्होंने ना तो कदे क्या, ना मैं उन्होंने क्या, क्योंकि देखो खुद के भी पारिवारिक लिंक होते हैं, अपने माँ बाप है वो बैठे हैं, उनके साथ किसका क्या संबंध है, क्या लिंक है, क्या उनकी रिश्तेदारी है, वो अपने को क्या पता है, तो अपने तो उनके पीछे चलेंगे भाई। मुझे जब जरूरत होती है या मेरे पे कोई विपदा आती है या मुझे कहीं भी जरूरत, तो वो मेरे साथ खड़े रहते हैं,
सामने भले ही उनके कोई भी हो। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ। हाँ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਬੰਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ चेयरमैन सीगे गणेश राज जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चेयरमैन थे तब वो विरोध हुआ था, काफी लोग आए थे, तो वो उन्होंने एक जाटों को भी नहीं, एक सिंधी भी था उसको भी गालियां निकाली थी, और एक सोनी था शायद उसको भी गालियां निकालता था ग्रुप के अंदर। तो उस टाइम हमारे जौहड़ साहब है एडवोकेट जयपाल जी जौहड़ है शायद उनका नाम, तो उनको उन्होंने बोला था। तब सारे समाज के इकट्ठा हुए थे, आप वीडियो देखना, उसमें जाट भी थे, बनिया थे, सरदार थे, सभी कौम थी। तो सभी में ये रोष हुआ कि व्यक्तिगत लड़ाई को लेके ये क्यों किसी का जातिवाद में फैला रहे फैला रहे। और आपसी भाईचारा आप क्यों किसी का खराब करें। खराब। तो सभी ने विरोध किया, तो गणेश जी ने लिखित में माफी मांगी थी। अच्छा, वो माफी मांग ली थी? हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं माफी नहीं मांगी थी गणेश ने। नहीं, लिखित में माफी मांगी थी, तब चेयरमैन थे तब, जब चेयरमैन से उन्होंने हाँ जी। माफी मांग ली थी। ठीक है। और अभी वो धरना पीछे और दिया था, उसकी वो कार्रवाई, वो केस अभी चल रहा है। चल रहा है। हाँ जी। ਇੱਕ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸਤੀਪੁਰੇ, हाँ जी। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ पूरा क्यों नहीं हो रहा? उसको 7 साल हो गए, म्याद तो उसकी खत्म होगी, लेकिन उसको अभी बना रहे हैं। कभी तो वो ठेकेदार बोलता है बजट नहीं आ रहा, कभी बोल रहे हैं मुझे बजट दे नहीं रहे हैं, कभी वहाँ के जैसे आसपास के उनके साथ जो काम करते हैं लोग हैं और भी ठेकेदार है, वो कुछ ठेकेदार थे वो भाग गए, और कुछ जैसे जिनके पास जेसीबी या मशीन थी, सारी चीज उस ठेकेदार के पास नहीं थी, तो कुछ के पास जेसीबी या मशीन थी, तो उन्होंने उनसे पैसे मांगे खुद की मशीन के किराया रेंट, वो मांगा तो उसने दिए नहीं, तो वो छोड़ के काम चले गए। तो उसके पास पूरा सामान नहीं था, तो वो बीच बीच में रुकता रहा। अभी वो उसका काम दोबारा स्टार्ट हुआ है, और जितनी प्लंटियां लगी थी उस ठेकेदार ने सारी माफ करवाई है, और वो काम दोबारा अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। तो लगता कितने टाइम पुल बन जूगा? बन जो तो दी आस है म्याद तक खत्म होने आ गई पुल दी, हुण ओहदा उद्घाटन भी करनगे। सही टाइम 8 साल हो जाएंगे, 8 साल तो पूरा पुल बनूंगा। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਲਕੀਤ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜੋ ਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਫਟਕਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ बैठे ਸੀ पुल ਦੇ थल्ले, पूरा एक दिन वो पुल को रोका भी था। तो उसके बाद में उस ठेकेदार ने वहाँ पे वो डामर बोलते हैं जिसको, वो डाल दी थी। उसके बाद बारिश भी, पानी वहाँ पे कभी इकट्ठा नहीं हुआ। उसके बाद रेगुलर काम चल रहा है, ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ? देखो वो सरकार के हाथ में है, हमने तो अपनी मांग रखी थी गौ माता चौक की, और बनना भी चाहिए, क्योंकि बीकानेर संभाग में कहीं पे भी गौ माता चौक नहीं है। ठीक है। और पहला अपना जिला होगा, अगर गौ माता चौक बनता है तो पहला जिला होगा जहाँ पे गौ माता चौक बना है। और पास में ही 500 मीटर के ऊपर बहुत बड़ी अपनी हनुमानगढ़ की कामधेनु गौशाला भी है। हाँ, वो गौशाला भी। हाँ जी। और ये हाईवे है जो पंजाब को और हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है, तो गौ माता चौक बनना भी चाहिए, क्यों इसमें किसी की जाति धर्म या कोई विशेष का वो विशेष कारण नहीं। हाँ जी। एक बई ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं सब गिने तो नहीं, लेकिन पहला मैंने पर्सनली मेरा ब्लड कैंप लगाया था, वो बींजवाला मेरा एक फ्रेंड था आशीष दुगेसर, वो नगी का था। तो 2 भाई थे, दोनों ही एक्सीडेंट में वो डेथ हो गई उनकी। ठीक है। तो उसकी याद में ब्लड बैंक लगाया था बींजवाला, और भाइयों ने बहुत सहयोग भी दिया था, भी हनुमानगढ़ से जाके गानगढ़ से आए लोग, तो वहाँ पे 350-400 करीब बींजवाला राजवंशी गार्डन में प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। और उसमें सहयोग भी भाइयों ने बहुत किया था। जिनका वो राजवंशी गार्डन है, उन्होंने भी हमसे कोई उसका पूरे दिन का कोई पैसा या कुछ भी नहीं लिया, और व्यवस्था भी उन्होंने करके दी थी सारी। और हम ब्लड कैंप में कभी बुलाते हैं तो अपना एक बिश्नोई, रविंद्र बिश्नोई, सादुल शहर का भाई है, तो वो इसके कोई ब्लड कैंप में जैसे कोई कमेटी बनी हुई है, उसके वो अध्यक्ष भी हैं।
तो हमें आधी रात को या कभी भी कुछ कहीं पे ब्लड चाहिए तो हम उनको याद करते हैं तो वो हमें वो हमारा पूरा करवा देते हैं। ब्लड पूरा करवा। हाँ जी। तो मैं लोगों को ये कहना भी चाहूंगा कि आप उनसे रविंद्र जी बिश्नोई से जुड़ो, और आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कहीं पे भी आपको ब्लड की जरूरत हो तो उनको कॉल भी करो, हमें कॉल करो, हम ब्लड भी रिक्वायरमेंट किसी की कितनी हो तो वो हम पूरी करवाते हैं, चाहे प्रोवाइड करा। हमें डोनर भी देना पड़े। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ब्लड कैंप? हाँ जी। और उस टाइम उसके आशीष भी, थे, उसके 3 ब्लड कैंप लगे थे। पहला तो भिंजवैला, दूसरा उसी दिन दूसरा कालीबंगा लगा था, तो एक दिन सेम एक डे? ही दिन। हाँ, 3 ब्लड कैंप लगे थे। और तीसरा लगा था जयपुर। जयपुर में लगाने वाले थे, एक तो यहाँ के बाखरावाड़ी के हैं अभिषेक बाखर, अभी उनके पापा सरपंच भी है, साथ में साथ एडवोकेट भी है, संग्रिया महेंद्र जी बाखर। ठीक है। तो उन्होंने वहां पे वो लगाया था ब्लड बढ़िया यूनिट, टोटल दोनों तीनों को मिला के 1314 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ था। ठीक है भाई। और इधर कालीबंगा सुशील जी राविया थे, उन्होंने लगवाया है। वो भी शायद सरपंच, पूर्व सरपंच थे या अभी सरपंच है, वो नॉलेज नहीं, लेकिन थे वो। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਮ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ब्लड कैंप? हाँ जी, उसका साल साल जो है इस बार उसके गांव में ही लगा था, नग्गी में, ठीक जिसका है। पैतृक गांव है। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਕ ਬਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟਿੱਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਏ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਗਲਤ? देखो जी, अगर किसान की बात की जाए तो वो फैक्ट्री बहुत ज्यादा गलत थी, और टिब्बी के वासियों की बात की जाए तो भी वो फैक्ट्री गलत थी, क्योंकि एथनॉल को एक आप एल्कोहल भी बोल सकते हो। बोल कर तो इसकी स्मेल है तो 10 किलोमीटर के एरिया में पूरी होती है, तो वहां पे रहा भी नहीं जाता। प्रदूषण भी खूब था, भूमि प्रदूषण भी था, वायु प्रदूषण भी था, सारा का सारा उसमें प्रदूषण था। लेकिन इसके अंदर उन्होंने, फैक्ट्री वालों की क्या डिमांड थी भी, एक तो हम पराली को इकट्ठा करेंगे, एक गन्ना है वो लेंगे, एक मक्के की खरीद करेंगे, एक चावलों की खरीद करेंगे भी, इनसे हम एथनॉल भी बनाएंगे। साथ के साथ पानी का भी खपत थी, तो जो धरती का वाटर लेवल है तो वो भी डाउन जाता। तो कल को आसपास के जो किसान है उनको बहुत नुकसान था। जैसे वो चावलों की रिक्वायरमेंट कर रहे थे, लेकिन चावल पकते हैं तो पूरा पानी चाहिए। अगर अपने 1 किलो चावल, मतलब वो पंजाब वाला किलो नहीं, 1 किलो केजी, 1 किलो चावल अपने पकाते हैं, मतलब टाइम पे लगाते हैं, तो कम से कम 2500-3000 लीटर, 2500-3000 लीटर 1 केजी चावल के लिए पानी चाहिए अपने, पानी चाहिए। हाँ जी। और अगर थोड़े चावल लेट लगाएंगे तो 2500-2000 के बीच हो जाएगा। तो अब एथनॉल बनाने के लिए इतना ही पानी चाहिए। कोई कह रहा 2 लीटर चाहिए, कोई कह रहा 4 लीटर चाहिए, नहीं, कम से कम इतना पानी एथनॉल के लिए चाहिए। तो अब आप देख लो, पानी तो चाहिए, लेकिन जो उसका वो गंदा पानी था वो कहाँ निकालते? पास में राजकनाल बड़ी नहर है जो अपने को पानी पिलाती भी है, खेतों को भी पानी देती है, उसमें भी वो गंदा पानी डाल दे। तो सभी जगह से वो, मतलब यही था भी ये यहाँ नहीं लगनी चाहिए। राजस्थान में वो 25 लगनी थी, लेकिन वो नहीं लगी। अब आप बात करते हैं अभी, जैसे आपने नरमा की ये कॉटन फैक्ट्री है, इसके आप जो खेत में लगी हुई है, तो आप उसके आसपास भी जाओगे ना तो वहां पे वो जो भी फसल है उसके ऊपर देखना आप, मतलब भी वो थोड़ी बहुत निकली नहीं है फसल, उससे पहले वो जलने लगे। तो हर फैक्ट्री का नुकसान तो है, तो ये सही है, ये लगनी भी नहीं चाहिए। और किसानों के लिए आवाज उठाई जिन भाइयों ने, जैसे भाई महंगा सिद्धू है, तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਆ, ਵਧਾਈਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੀ ਅਨਾਉਂਸमेंट हुई है, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਆ वो कह रहे भी ये फैक्ट्री होने थे नहीं लगूगी। बढ़िया बात है, ना लगे। और अभी वो अरावली वाला भी चल रहा है भी, अरावली हटाओ। तो वो अरावली अपने राजस्थान की पहचान है, उसकी वजह से जयपुर, वो ये इधर संभाग है अपने, बीकानेर संभाग हुआ है इधर, बारिश उसकी वजह से अच्छी होती है, अरावली की वजह से। और बहुत वो अच्छी पहचान है अपनी, पुरानी सांस्कृतिक चीजें जैसे अपने कहीं नहीं मिलती। अब अपने हनुमानगढ़ में अपना जो किला है वो देख लो, कितने लोग यहाँ पे देखने आते हैं उसको। कालीबंगा संस्कृति के वो उसमें कितने वो पड़े हैं, वो लोग उसको देखने आते हैं, टूरिज्म बना हुआ है वो।
तो अरावली के पक्ष में मैं तो हूँ नहीं भी उसको हटाए, और हटनी भी नहीं चाहिए, और उसके लिए भी जाएंगे भी। जाओगे उसी? हाँ जी, मैं 10 तारीख ਨੂੰ मिस कर गया ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ। हाँ 10 तारीख को ਤੁਸੀਂ ਆਏ नहीं थे। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। क्यों नहीं है? ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ अपना भाई आई यही कहूँगा कि एक तो यूथ बहुत ज़्यादा है नशे में, सेल करने में भी यूथ है और नशा करने में भी यूथ है। तो मेडिकल वाला नशा है वो तो कुछ कंट्रोल हो गया, और जो आजकल चिट्टा बॉर्डर से पार आ रहा है वो नशा हो गया, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अफीम डोडे है वो भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों यहाँ पे कोल्ला में पकड़ा था, ट्रक पकड़ा काफ़ी कुंटलों में। उससे उससे बाद में अभी कोई एक अपनी जो संगरिया से नहर आती है उसके अंदर डोडे थे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हर जगह नशा फैल रहा है। प्रशासन को पता भी है कौन कर रहा है, कब क्या ला रहा है, लेकिन प्रशासन इस पे कोई ज्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनको वो मंथली रहते हैं, तो प्रशासन तो बोलते हैं, अगर कोई शिकायत करता है तो बोलते हैं बिनू यहाँ तो मान पकड़ा देगा, मैं कि यहाँ पकड़ लिया वीडियो बना। लेकिन हाँ उनको पता है भी कौन बेच रहा है, उनसे कोई उनको ये तो है नहीं भी उनको पता नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता भी अगर उनका कोई बच्चा या कोई चिट्टे की चपेट में आ गया, 1-2 के तो आए हुए हैं तो वो बहुत रो रहे हैं, लेकिन उनका कोई जैसे बड़ा अफसर है, एसपी हुआ, डीएसपी हुआ, एडिशनल एसपी हुआ, सीआई हुआ, इनके कोई बच्चे आ गए फिर वो भागेंगे, उनको किसी और की परवाह नहीं है, उनको सिर्फ अपने बच्चों की अपनी परवाह है। अपने ठीक है तो दुनिया बाढ़ में जाए। लेकिन ये नशा है जो यूथ है, कुछ यूथ के लोग हैं वो रोक भी रहे हैं, तो रोकना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। ਇੱਕ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਫੀਮ ਡੋਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੇ ਦੇ पोस्ट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਉਹ खुलने चाहिए दोबारा। देखो कहीं ना कहीं चिट्टे को रोकना है तो सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए, जैसे अपने पुराने चूना फाटक में था तो ये डोडों के ठेके थे, तो इनको खोलना भी चाहिए, और इससे चिट्टा कुछ हद तक रुकेगा, क्योंकि इससे लोग मरते नहीं है। और जो लेकिन नशा अगर नाम दे रहे हो तो वो चिट्टा है तो वही नशा है, डोडे है तो वो भी नशा है, अफीम है तो भी नशा है, शराब है तो भी वो नशा है। लेकिन वो चिट्टे के लिए अगर रोकना है तो उनको ये डोडों का पोस्ट के ठेके खोलने चाहिए, तो इससे यही चिट्टा रुकेगा। ਇੱਕ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? वो हनुमानगढ़ के अंदर पहले कृषि महाविद्यालय बहुत मुश्किल से मिला है, और बहुत ज़्यादा उसके लिए लोगों को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के विधायक को, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था जब वो जाके कृषि महाविद्यालय मिला था। ठीक है। तो उसके अंदर 4 चीज़ें आई हुई थी, एक तो कन्या छात्रावास, दूसरा बॉयज हॉस्टल, तीसरा डी नवास, ठीक है, और चौथा एग्रीकल्चर कॉलेज की खुद की बिल्डिंग। तो उसमें क्या हुआ भी, ये बजट काफी बड़ा था, तो उसमें एग्रीकल्चर कॉलेज जो बना था पूरा, तो उसमें घटिया मटेरियल लगाया हुआ। तो पहली बारिश आई तो हमने जाके वहां पे देखा भी कॉलेज बना है, यार अपने हनुमानगढ़ के अंदर कृषि महाविद्यालय बने तो यार उसको देख के हम तो वैसे ही गए थे, तो बारिश हुई थी पहले ही, तो वो पानी पूनी वो सूख गया था। आगे जाके देखा तो वो पूरा का पूरा फटा हुआ, हर दीवार उसकी फटी, पहली बारिश से हर दीवार उसकी फटी हुई। मेरे पास उनकी फोटोएं पड़ी है। ये ठेकेदार की गलती है? सारी ठेकेदार की, और जो कंपनी ने ठेका लिया उसकी, सतीश बंसल कंपनी थी वो शायद, तो ये टाउन की है, उन्होंने वो बनाया था, तो इतना घटिया बनाया था भी, चलो दीवारें फट गई वो ठीक है, और जो उसका मतलब डिजाइन था वो इतना सुंदर था, लेकिन उसको बनाने वाला और जिस ठेकेदार ने इसको बनाया है, तो मुझे नहीं लगता वो कोई मिस्त्री या किसी कारीगर से, बढ़िया कारीगर से बनाया है। उसकी दीवारें ही टेढ़ी, उसका हर जो पार्ट बनाया वो सारा का सारा टेढ़ा। फ्रंट था जो कॉलेज का, उसके बॉक्स बने वो सारे के सारे फटे हुए। कॉलेज के चारों तरफ मिट्टी नहीं लगाई हुई, वो सारी उसकी नींव है जो वो सारी की सारी फटी हुई, और पानी की जिसकी वो निकासी थी वो भी सारा पीछे से, जैसे कॉलेज का था वो एक बनाया हुआ था चैम्बर,
तो वो भी सारा टूटा हुआ, सारा फट गया। पाइपें थी वो सारी की सारी लीकेज। और जैसे अपने फिटिंग करते हैं तो फिटिंग वाली पाइपें थी वो भी सारी लीकेज, सारे में सिले नई हुई। छत के ऊपर पानी खड़ा है, फुट फुट पानी खड़ा है उसमें, कोई उसकी छत की निकासी नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣੂਗਾ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇयर नहीं, ਹੋਊਗੀ? उसकी हमने मुद्दा भी उठाया था। डीन थे हनुमाना राम जी, उन्होंने उसमें बढ़िया पैसे खाए हैं खूब जमकर। तो वो यहाँ से हमने तब मुद्दा उठाया उसके, वो हमने स्टूडेंट ने सभी इकट्ठा होके गए वहाँ पे। तो ये काफी चर्चा में रहा था। तो वो डीन यहाँ से भाग गया बीकानेर, उसने अपनी खुद की पोस्टिंग डीन ने वहाँ करवा ली। और डीन अपने यहाँ पे सिविल लाइन की थे, हनुमाना राम जी थे। और उनसे हमने पूछे तो उन्होंने कुछ आगे आवाज नहीं निकाली। हमने बोला सर आप साथ में लो, पहले तो बोलते मैं वो बनता था, मैं देखता था, वो ऐसे नहीं हुई। मैं क्यों चलो सर साथ में अपने, आप जा क्यों नहीं रहे, आपको डर किस बात का है? डर किस बात का? आप बोल रहे थे मैंने ऊपर रह के करवाया, वो हो ही नहीं सकता, तो वो फट कैसे गया? तो डीन बोलता आप चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। पीछे से हम हमारी गाड़ी में बैठे और डीन अपनी खुद की गाड़ी लेके भाग गया। तो वो यहाँ हनुमानगढ़ भी नहीं रुका, वो बीकानेर ही भाग गया था। तो उसके बाद में काफी आए भी थे ठेकेदार, भी लो मत बोलो, पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो हमने कहा भी पैसे ले लो, उसमें जो हमें पैसे आप देने की बात कर रहे हो, हमें क्यों पैसे चाहिए भी? जब आपके भी बच्चे अगर वहां पे पढ़ेंगे या कुछ कल को कुछ वो बिल्डिंग वो गिर गई तो कितने बच्चों का नुकसान होगा। अगर उसमें आपका भी अगर एक आधा बच्चा हुआ या आपके कोई रिश्तेदार का हुआ तो आप तब क्या जवाब दोगे? किसी का भी बच्चा हो सकता है वहां पे, अगर किसी के बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। 10 स्कूलों की छत गिरी थी। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ करते सरकार हैं? तो ध्यान देती है, लेकिन वो जो ठेकेदार है, सरकार का काम होता है बजट देना, स्कूल कॉलेज पास करने। लेकिन जो बीच में ठेकेदार है, जो कंपनियां काम करती है, वो खुद के बच्चों को और वो खुद के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है। वो दूसरे कोई गरीब किसान या कोई डॉक्टर का बच्चा है या कोई पुलिस स्टाफ का बच्चा है या कोई भी मतलब कर्मचारी का भी वो बच्चा हो सकता है, अपने नाम दे देते हैं भी गरीब किसान का बच्चा होगा। नहीं, वो कॉलेज तो सेम ही है, तो उसमें कर्मचारी का भी बच्चा हो सकता है, उसमें किसान का भी बच्चा हो सकता है, उसमें कोई गरीब मजदूर है उसका भी बच्चा हो सकता है। तो बच्चा किसी का भी हो सकता है। अगर वहां पे वो गिरता है और उसके नीचे छत ये नहीं पूछती भी तुम किसान गरीब का है या किसका है, उसको जब वो गिरनी है, घटिया काम हुआ होगा तो वो गिरेगी, नीचे कितने बच्चे मरेंगे उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये कंपनी वाले खुद अपने जेब भर लेते हैं। और जो पास करते हैं, बिल पास करते हैं, कुछ वो कर्मचारी होते हैं जो पैसे खाते हैं बिल पास करने, सबका कमीशन होता है, सबका कमीशन फिक्स होता है इनका। तो वो सीमेंट भी बचाते हैं, सरिया भी बचाते हैं, ईंटें भी बचाते हैं। ऊपर जाके हमने देखा तो कुछ दीवारें 10 इंची तो कुछ दीवारें 5 इंची बनी। अच्छा, तो वो कॉलेज का कोई निर्माण नहीं था। हमने तो यही मांग उठाई थी कि कॉलेज का पुनर्निर्माण हुआ, दोबारा किया जाए। हाँ जी। और डीन आवास देखा तो डीन आवास बिल्कुल सही बना हुआ। क्यों? डीन साहब ने तो खुद का आवास तैयार करवाया ऊपर रह गए, कॉलेज की किसको परवाह थी? बच्चे तो वहां पे पढ़ने कॉलेज पढ़ने हैं, डीन आवास में तो डीन ने रहना, आज है कल नहीं है, बच्चे तो वहां पे रहेंगे। तो उसका इन्होंने खुद की कमेटी बना ली, खुद के उसके सदस्य दे दिए, और आज तक उसका कोई पता नहीं चला भी क्या जवाब आया क्या नहीं आया। ठीक लेंगे, दोबारा उठाएंगे मुद्दे को, हैंडओवर नहीं करने देंगे। ठीक है, कॉलेज प्रशासन को हैंडओवर कंपनी को नहीं करने देंगे, ये मुद्दा दोबारा उठाएंगे। और इस बार कॉलेज के चारों तरफ पूरे स्टूडेंट और उसी कॉलेज के स्टूडेंट भी बैठेंगे, साथ बैठेंगे। एक ना थोड़ा ਜਿਹਾ ਰੋਬ भी लाया जाट ਹੁਣ कब्जा भी करने लग गए। नहीं जी, वो तो जैसे जाट छात्रावास था सरस्वती, तो अपने इसमें सबसे पुराना, बहुत पुराना है ये, तो इसमें हर समाज की बच्चियां पढ़ती है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, चाहे कोई समाज से हो। तो वो पीछे क्या है, वो जमीन थी वो इसी कॉलेज की थी, इसी संस्था की थी। वो क्या नगर पालिका की? नहीं, देखो आज तक कितने विधायक बन गए, किसी ने नहीं हिलाया, वो विनोद जी ने नहीं हिलाया, डॉक्टर साहब ने नहीं हिलाया, और ये गणेश जी चेयरमैन थे तभी नहीं हिलाया। ठीक है, अब इसमें ऐसी क्या चीज आ गई तो इसको हिलाने की जरूरत पड़ गई। आज तक किसी ने कुछ उस पर आपत्ति भी नहीं की, ना इस पे किसी ने जाके शिकायत दर्ज करवाई। तो अब जाके कब्जा तो ये करने वाले थे,
ना कि वो जाट छात्रावास वाले जो जितने भी थे, जितने भी वहां पे अंदर गुरु है पुराने, जितने भी वो संस्था को चलाते हैं, जिनका वो कॉलेज है, वो कोई किसी ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की। कोशिश इन्होंने की थी, जो अपने विधायक साहब हैं और चेयरमैन थे, ये दो ही थे वहां पे, और कोई नहीं था। और अकेले जाटों ने नहीं, आप वहां पे देखोगे सबसे पहले तो अपने बुजुर्ग थे जो कमेटी बनाई थी, उसमें सरदार भी थे, सिख भी थे, कुम्हारों के भी थे और मोमडनों के भी थे। और वो दोबारा ईंट और वो दोबारा दीवार निकाली थी बिना मसाले की उसी दिन। तो उसमें आप देखना, वीडियो पड़ी है, आपके पास भी आया होगा, तो उसमें आपको सभी कौम के वहां पे लोग मिलेंगे। और बुजुर्ग देखना उसमें कितने थे। चलो एक मान लेते हैं भी बच्चे मतलब लड़के हो तो वो तो एक कब्जा करने की बात करते हैं, लेकिन वहां पे सभी बुजुर्ग थे, तो किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, ये झूठे आरोप थे। इनको जो काम करना है वो कर नहीं रही है। जैसे अपने पानी की निकासी थी, वो किसी ने कोई नहीं निकाली, हर अंडरपास भरा हुआ था। आपको मैंने पीछे ही बोला था, जैसे एसपी कार्यालय के आगे से अपने जाते हैं तो ये विधायक आवास की ओर जाती है, ये रोड विधायक आवास की ओर जाती है। सिविल लाइन जो हनुमानगढ़ का पोर्श एरिया बोला जाता है, उसी में जब पानी खड़ा है तो फिर ये क्या विकास करवाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं करवाया। ठीक है, चौक बनवा दिए, चौक को थोड़ा खुला करवा दिया, बढ़िया, ये बहुत अच्छे जो काम किए हैं वो इन्होंने ਇਹ बढ़िया ਜਦੋਂ किए। ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਬੰਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उस टाइम बढ़िया काम किए हैं। उसके शहर बाद शहर दिखने में सुंदर लग गया। हम ये बोल नहीं रहे भी ये इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन पानी की व्यवस्था थी वो क्यों नहीं करवाई। इन्होंने कब्जे करने में तो बहुत ध्यान दिए, हर जगह इन्होंने कब्जे किए हैं। पानी की निकासी इनसे कभी कहीं पे भी नहीं हुई। सिविल लाइन वाला वो नाला टूट गया, फिर वो लाइट लेके बोलते हैं हमने इतने घंटों में बांध दिया, पानी इधर से नहीं निकाला, नाला वो बांध रही हो तुम। आपने देखा होगा कि कम से कम यहाँ पे 20 से 30 दिन पहली बारिश में पानी था, फिर एक महीने दूसरी बारिश में था। ठीक है, पानी बारिश लगातार आती रहती है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन रुक गया, चलो इधर पानी की निकासी नहीं है। बस स्टैंड की तरफ देख लेते हैं अब क्या हालात थे। हालात थे, नाली में उठा देते पानी। अभी नगर पालिका का जैसे पानी है वो नाली के अंदर डाल ही रहे हैं, अपने नगर परिषद का जो भी ये नालियों का टाउन जंक्शन का वो सारा उसी में डाल ही रहे हैं, तो ये वहां पे भी डाल सकते थे। डाल सकते थे। और पता नहीं कौन सा वो मंत्री आने वाला था, तब इन्होंने वो बाल्टियों से लेके खुद पता नहीं कितने ट्रैक्टर टैंकरों के बुला के मोटरें लेके नहीं वो पानी निकाल दिया। अभी कल को हमें गालियां ना सुनने को पड़े, क्यों, कल को टिकट पक्की करनी है तो हमारे जो मंत्री महोदय वो कोई कहीं से पजामा उठा के आए, तो आम आदमी की तो इनको कोई परवाह कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। पानी का पूरा डूबा हुआ था हनुमानगढ़, हर अंडरपास के अंदर पानी खड़ा हुआ था। पानी की निकासी ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਬੀਬੀਪੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲੇ। पहले होती थी पानी की निकासी, अब नहीं हो रही। साथ में अब तो विकास ज्यादा हुआ है। नगर पालिका में आ गई फिर जगह जगह। नगर परिषद में तो ठीक है वो है, लेकिन पहले भी तो जगह कम थी, विकास भी कम था, तब पानी की निकासी कहाँ थी। कभी आपने हनुमानगढ़ के अंदर आपको देखा होगा हनुमानगढ़ डूबा नहीं था, लेकिन इस बार हनुमानगढ़ हर तरीके से डूबा था। जंक्शन टाउन में पानी की निकासी है बढ़िया, वहां पे कुछ पानी था ही नहीं। और बहुत से टाउन में आपने देखा होना, एक भाई है अपना, उसका घर भी बैठ गया था, अभिषेक नाम था शायद उसका, टोटल का टोटल घर बैठ गया। वो किन की वजह से भी बारिश हुई, पानी नहीं निकला, पानी इकट्ठा हो गया, वो घर बैठ गया। मकासर में कितने गरीब लोगों के घर डूब गए, कितने घर गरीब यहाँ पे कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे थे, किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। और ये जो अच्छा काम करते हैं वहां पे जाके फुल वीडियो बना लेते हैं, हमने ये कर दिया, जो काम करने थे वो इन्होंने किए नहीं, दिखावा है सर। इनको तो इस बार बारिश आए तो कलेक्ट्रेट के सामने चावल लगानी चाहिए, चावल की कलेक्टर को, एसपी को, चेयरमैन को, विधायक को खेती करनी चाहिए वहां पे। क्यों, चावल पानी से होते हैं, जमीन का पानी निकालना नहीं पड़ेगा, पानी वहां पे रहता ही रहता है। अभी तक आप देखोगे तो पानी वहां पे अभी तक पानी के कुछ ना कुछ गड्ढे भरे हैं। हाँ, अभी सीलन है उधर, जितनी बिल्डिंग बनी है, तो इसी कारण प्लॉट भी है जो वहां पे कोई नहीं लेगा। सबसे घटिया काम है ये कि पानी इकट्ठा हुआ अपने जहाँ पे पोर्स एरिया, जहाँ पे एसपी, कलेक्टर, हनुमानगढ़ जिले के जो मालिक है और विधायक सभी जहाँ बैठते हैं वहां पे पानी इकट्ठा। गलत बात है ये।
ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ जी। ਤੇ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ। पिछले दिनों देखा आपने भी, बहुत से जानवर थे वो पशु थे, उनको काट के यहाँ पे डाला भी गया था। तो उसके बजरंग दल के कुछ भाई है, महेंद्र पूनिया, आशीष जी पारीक, कुलदीप नरूका, और इन्होंने हर बार उन पे ये पशुओं पे अत्याचार देखा तो उन्होंने आवाज उठाई है। उन पे पुलिस प्रशासन द्वारा उनको लाठीचार्ज प्रताड़ित भी किया गया था। आपने देखा होगा भी कुलदीप नरूका के वो अंदर घसीट के और वो सीआई साहब थे वो लेके गए अंदर, लेकिन उन्होंने पकड़ने की कोशिश नहीं की। तो आवारा पशु है उनका भी कोई गौशाला या जैसे कोला फार्म है बहुत बड़ा है वहां पे रखना चाहिए और उनका खाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लेकिन उनपे जैसे अकेले व्यक्तियों की भी कोई गलती नहीं है, बहुत से व्हीकल है लेके वो उसके पशुओं के अंदर बैठ जाते हैं तो खुद का भी नुकसान होता है, बेचारे पशु का भी होता है। फिर उनको संभालता नहीं है कोई, तो वो रोड पे मरे हुए होते हैं, रात को दिखता नहीं है, मरे हुए के ऊपर और आके बाइक वाले और वो भी लगती है उनकी। तो दोनों तरफ से ही खतरा है, तो इनका इलाज करना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਧੁੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਧੁੰਦ 'ਚ। रिफ्लेक्टर लाइट के पट्टे देते हैं वो, लेकिन उनकी म्याद क्या, महीने 2 महीने। ये तो अनमोल जानवर है बेचारा, कहीं ना कहीं फंसा के वो तोड़ लेगा। इनकी तो परमानेंट व्यवस्था करनी चाहिए भी। इनको आवारा जो पशु दिखा उनको वहां पे उस 4 दीवारी के अंदर रोका और वहां पे हरे चारे की पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कोला फार्म के अंदर आप देखोगे शाम को, अब तो चलो ठंड है तो शाम को वहां पे रोड के ऊपर टाउन कोला से निकलते हैं नौरंग दशहर तक पशु बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी बहुत होता है। तो वहां पे इनको व्यवस्था करनी चाहिए कोला, क्योंकि अपने शहर में कोई जगह नहीं है, कोला वाला वो फार्म है वही जगह है, उसी में व्यवस्था इनको करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ के मुद्दे भी आपको उठाने चाहिए और आप उठा भी रहे हो, और ज्यादा जो भी दिखता है वो उठाओ। और आपको मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल को माध्यम से लोगों तक आवाज जाती है। हर प्रशासन द्वारा पर्चा काट दिया जाता है जो मुद्दा उठाता है उसपे। नहीं, देखो भी अगर आप कुछ काम करोगे तो आपको रोकेंगे। वही बात है भी, आप अपने जलवे बरकरार रखो, जलने वाले अपनी जलन बरकरार रखें। धन्यवाद भाई। ठीक है।